السلام علیکم اور خوش آمدید ایم اے اسٹوری سینٹر میں۔ یہاں سنائی جاتی ہیں وہ کہانیاں جو صرف کانوں سے نہیں دل سے سنی جاتی ہیں۔ آج کی کہانی ہے ایک صابر مرد کی، ایک ناشکری عورت کی اور ایک ایسی نعمت کی جو انسان کے ظرف کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے ناشکری عورت کا انجام۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہاڑوں کے دامن میں بسے ایک سادہ سے گاؤں چمن پور میں زندگی دھیرے دھیرے بہتی تھی جیسے خاموش دریا۔ یہاں کے لوگ محنتی تھے، دل کے صاف اور معمولی چیزوں پر خوش ہو جانے والے۔ اسی گاؤں میں رہتا تھا ساجد، ایک درویش دل انسان جس کا پیشہ لکڑیاں کاٹنا تھا اور کام صرف رزق حلال کمانا۔ ساجد کا گھر چھوٹا سا مٹی کا بنا ہوا تھا، چھت ٹپکتی تھی، دیواروں پر کائی جمتی تھی، مگر ساجد کا دل کبھی نہیں ڈگمگایا۔ وہ ہر دن شکر کے ساتھ گزارتا۔ جب فجر کی اذان ہوتی وہ اپنی پرانی کلہاڑی لے کر جنگل کا رخ کرتا اور شام کو لکڑیوں کی گٹھری کے ساتھ لوٹتا۔ گاؤں کے بچے اسے اب بابا ساجد کہہ کر محبت سے بلاتے، لیکن اگر اس کے صبر اور شکر کو کوئی نہ سمجھ سکا تو وہ تھی اس کی بیوی نسیمہ۔ نسیمہ ایک خوبصورت عورت تھی، مگر دل سے سخت، مزاج سے تیز اور زبان سے زہریلی۔ وہ دن رات شکوے کرتی، یہ کیسی زندگی ہے؟ دوسروں کے گھروں میں پنکھے چلتے ہیں، یہاں ہم لو میں جلتے ہیں۔ ان کے کپڑے ریشمی ہوتے ہیں، میرے تن پر یہی 3 جوڑے ہیں، اور تم ہو ہر دن درختوں سے لڑتے ہو پر میری زندگی میں کوئی بہتری نہیں لاتے۔ ساجد بس مسکرا کر کہتا، نسیمہ یہ سب عارضی ہے، رزق حلال کی تھکن رب کے نزدیک جنت کا دروازہ کھولتی ہے، شکر کرو۔ مگر نسیمہ کا دل روز بروز اور سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ گاؤں کی دوسری عورتوں سے حسد کرتی، جب کبھی کسی کی نئی چوڑیاں دیکھتی، شادی بیاہ میں جا کر قیمتی زیورات دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں حسرت اور دل میں غصہ بھڑک اٹھتا۔ ایک دن جب ساجد شام کو تھکا ہارا گھر آیا تو نسیمہ نے روٹی پھینک دی، گیلی لکڑیاں لائے ہو؟ دھواں پورے گھر میں بھر گیا، نہ سانس لینے کی جگہ نہ سکون۔ ساجد نے کہا، بارش ہو گئی تھی نسیمہ، لکڑیاں بچا لایا ہوں تو بھی شکر ہے۔ شکر؟ تمہارا شکر ہی میری زندگی برباد کر رہا ہے۔ وہ رات ساجد نے کمرے کے باہر چارپائی پر گزاری، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اور دعا کی، اے میرے اللہ میری بیوی کو ہدایت دے دے، اسے شکر سکھا دے۔ مگر اندر نسیمہ آسمان کی طرف دیکھ کر بالکل مختلف دعا مانگ رہی تھی۔ یا اللہ مجھے اس فقیر، محنتی اور بدحال زندگی سے نجات دے دے، مجھے کچھ ایسا دے دے کہ میں ان سب سے آزاد ہو جاؤں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی دعا سن لی گئی ہے، مگر وہ جیسے چاہتی تھی ویسے نہیں۔ اگلے دن ساجد معمول کے مطابق جنگل چلا گیا، مگر اس دن کچھ الگ تھا۔ بارش کے بعد کی ہوا میں نمی تھی اور درختوں سے قطرے ٹپک رہے تھے۔ جنگل میں اس کی کلہاڑی کی آواز کچھ عجیب لگ رہی تھی، جیسے ماحول کچھ کہنا چاہتا ہو۔ کلہاڑی چلاتے ہوئے ساجد کو ایک آواز سنائی دی جیسے کوئی کرا رہا ہو۔ وہ فوراً رک گیا، آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک پتھریلے گوشے میں جھاڑیوں کے پیچھے ایک زخمی شیر پڑا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بمشکل سانس لے رہا تھا۔ ساجد کے قدم کانپنے لگے، مگر اس کی فطرت میں رحم تھا۔ اس نے جھٹ سے اپنی چادر نکالی اور شیر کے قریب جا کر اس کے زخم کو باندھنے کی کوشش کی۔ شیر نے آنکھیں کھولیں، ان میں کوئی درندگی نہیں تھی، ایک عجیب خاموشی، ایک درد اور ایک بے زبان التجا تھی۔ ساجد نے کچھ لمحے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، تو بھی رب کی مخلوق ہے، چل میں تجھے اپنے ساتھ لے چلتا ہوں۔ وہ شیر کو بڑی احتیاط سے اپنے لکڑیوں کے چھپر کے نیچے لے آیا، جہاں وہ چھوٹا سا کوٹھا تھا جو پہلے گائے باندھنے کے کام آتا تھا۔ اس نے شیر کے زخم صاف کیے، پرانے کمبل سے ڈھانپا اور اسے پانی دیا۔
जब वो शाम को घर आया तो नसीमा पहले ही गुस्से में बैठी थी। कहां मर गए थे? दोपहर का खाना ठंडा हो गया। साजिद ने नरमी से कहा, आज जंगल में कुछ अलग था। एक जख्मी शेर मिला, इसे बचा कर लाया हूं। नसीमा पर जैसे बम फोड़ दिया हो। पागल हो गए हो? गरीब घर में जंगली जानवर पालने लगे हो, अब इंसानों के बाद दरिंदों को पाल कर नेकी करोगे? साजिद ने आहिस्ता से कहा, वो बहुत कमजोर है, बस मरने के करीब था, दिल ना माना छोड़ने का। तुम्हारा दिल तो कभी मेरी खुशियों के लिए ना धड़का, मगर एक जंगली जानवर के लिए छलक उठा। साजिद खामोश हो गया। वो जानता था बहस करना फजूल है, मगर इसे यह मालूम न था कि जो मखलूक वो जंगल से लाया है वो सिर्फ एक जख्मी शेर नहीं, वो एक इम्तिहान है, एक राज है और एक फैसला है जो आने वाले दिनों में सब कुछ बदल डालेगा। वो रात खासी पुरसुकून थी, मगर साजिद के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार बाहर बने इस छोटे से कोठे का दरवाजा खोलकर झांकता जहां वो जख्मी शेर सो रहा था। शेर अब भी कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में साजिद के लिए खौफ नहीं बल्कि मानूसियत थी। जैसे वो इसे पहचान चुका हो, जैसे इसे मालूम हो कि यही शख्स उसकी जिंदगी का मोड़ है। साजिद ने शेर को गर्म दूध में दवा मिलाकर पिलाई, जख्म पर मरहम लगाया और जब तक वो सो ना गया इसके पास बैठा रहा। रात के आखिरी पहर जब वो थकन से चूर वापस घर आया तो नसीमा की तेज नजरें इसका इस्तकबाल कर रही थीं। क्या अब तुम जानवरों के साथ सोना शुरू हो गए हो? साजिद ने नरमी से कहा, वो जख्मी है नसीमा, अकेला है, कल तक ठीक हो जाएगा तो वापस जंगल छोड़ आऊंगा और तब तक हम इसके लिए गोश्त का बंदोबस्त करेंगे या इसे बिस्तर पर बिला लाएंगे। साजिद ने फिर कुछ न कहा। वो जानता था इसके जवाब अब लफ्जों से नहीं, वक्त से दिए जाएंगे। अगली चंद रातें साजिद की रोजमर्रा की मेहनत में और इस शेर की देखभाल में गुजरे। शेर अब कदरे बेहतर हो रहा था, मगर हैरत की बात यह थी कि वो नरमी और खामोशी से साजिद के हर हुक्म को मानता। वो ना गुर्राता ना चीखता, बस एक तरफ खामोश बैठा रहता, जैसे इसने अपना हर रद्द अमल किसी आजमाइश के लिए रोक रखा हो। फिर एक दिन साजिद घर में दाखिल हुआ तो नसीमा ने इसे सख्त लहजे में कहा, आज 2 औरतें आई थीं। तुम्हारा शेर पालने वाला फकीर कहा है उन्होंने, तुमने मुझे गांव में तमाशा बना दिया। साजिद ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वो खामोशी से कमरे में गया और अहमद के लिए बचा कर रखा दूध उठाकर बाहर शेर के पास चला गया। नसीमा को उसकी ये खामोशी और शेर के लिए वो मोहब्बत खटकने लगी। वो सोचने लगी, क्या वाकई ये जानवर कुछ खास है? साजिद किसी और नेकी की तरफ बढ़ रहा है जहां मेरी कोई हैसियत नहीं रहेगी। इस दौरान एक अजीब बात यह हुई कि गांव में कुछ ऐसे वाकयात होने लगे जिनका किसी को अंदाजा न था। रातों को अक्सर लोगों के खेतों से चोरी की शिकायत आती थी। कभी कोई मवेशी गायब होता तो कभी किसी के घर की दीवार फलंगी जाती। मगर जब से साजिद ने शेर को अपने घर के करीब रखा था, इसके आसपास किसी ने चोरी की हिम्मत तक न की। एक रात जब गांव में एक चोर को पकड़ा गया तो उसने कहा, हमने साजिद के घर में जाने की कोशिश की थी, मगर एक जानवर की आंखें इतनी चमकती थीं कि लगा जैसे आग के शोले हों। हम भाग निकले। ये बात जंगल की आग की तरह गांव भर में फैल गई। लोग साजिद की इज्जत करने लगे, इसकी दियानत और अल्लाह पर तवक्कल की तारीफ करने लगे। और शेर, वो अब मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो चुका था, मगर जंगल जाने का नाम ना लेता। वो दिन में साजिद के कहने पर कोठे में छुपा रहता और रात को आहिस्ता आहिस्ता घर के आसपास चक्कर लगाता, जैसे पहरा दे रहा हो। साजिद ने नसीमा से कहा, अब तो देख लिया, इसकी मौजूदगी में अल्लाह ने बरकत डाल दी है। हमें जो कुछ मिल रहा है वो उसी शुक्र के नतीजे में है। मगर नसीमा का दिल कहां मुतमईन होता था।
तो अब तुम कहना चाहते हो कि जो कुछ हो रहा है वो शेर की वजह से है, तुम्हारी वजह से नहीं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा खून पसीना कुछ नहीं, सब कुछ इस जंगली जानवर की नवाजिश है। साजिद ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं कुछ भी नहीं नसीमा, मैं तो सिर्फ वसीला हूं। असल करने वाला तो वही है अल्लाह, और उसने चाहा तो एक दरिंदे से भी रहमत जाहिर हो सकती है। यह जुमला नसीमा के दिल को छेद गया। उसने महसूस किया कि साजिद अब इस शेर की मौजूदगी में पहले से कहीं ज्यादा पुरसुकून, मुतमईन और मजबूत हो गया था। वो जो रोज तानों में बिखरता था अब शुक्र में रहने लगा था, और यही तब्दीली नसीमा को मंजूर ना थी। इस रात जब साजिद मस्जिद में नमाज के लिए गया, नसीमा कोठे के करीब आई और शेर को देखने लगी। वो अब भी खामोश था, जैसे जानता हो कि उसकी आजमाइश अभी मुकम्मल नहीं हुई। नसीमा ने दरवाजा बंद किया और दिल में कुछ फैसलाकुन सोचने लगी। इसके दिल में एक मंसूबा उभरने लगा, एक खामोश साजिश जो उसे इस जानवर से आजाद कर देगी। मगर तकदीर के सफ़े पर लिखा जा चुका था कि वो आजादी एक कीमत के साथ आएगी। रात की खामोशी में जब गांव के चिराग बुझ जाते और आसमान पर तेज हवाएं दरख्तों को हिलाती थीं, तब साजिद के घर के बाहर एक खामोश साया हरकत करता। वो शेर जो अब जख्मी जानवर नहीं रहा था बल्कि एक निगहबान बन चुका था। कोठे में रहते रहते वो अब साजिद से मानूस हो चुका था। वो दिन में साजिद के कदमों के करीब लेटा रहता और रात के अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता घर के गिर्द चक्कर लगाता। इसकी मौजूदगी में न सिर्फ घर महफूज था बल्कि साजिद की जिंदगी में भी यकदम सुकून और बरकत का आगाज हुआ था। अब न लकड़ियों में कीड़ा लगता, न बारिश से सारी गठरी खराब होती। बाजार में उसकी लकड़ियां जल्दी फरोख्त हो जाती और कीमत भी अच्छी मिल जाती थी। फहीम, गांव का ताजिर, अक्सर कहता, बाबा साजिद, तुम्हारे रिस्क में अब तो जैसे अल्लाह ने खास रहमत डाल दी है। तुम्हारे हाथ की लकड़ी में खुशबू आ गई है। साजिद सिर्फ इतना कहता, यह सब इसका करम है और उसकी अता, जो चाहे जैसे चाहे नवाज दे। मगर नसीमा का दिल अब और ज्यादा तंग होने लगा था। इससे लगने लगा था जैसे इसका शौहर अब शेर के करीब होता जा रहा है, इससे खुश होता है और हर नेकी, हर सुकून उसी की वजह से आ रहा है। वो खुद को कमजोर, नजरअंदाज शदा और गैर जरूरी महसूस करने लगी थी। एक रात जब साजिद शेर को रोटी देकर वापस गया, शेर ने जैसे आसमान की तरफ देखकर एक अजीब सी गरज की। वो गुस्से में नहीं था, बस उसकी आंखों में एक रोशनी चमक रही थी, एक ऐसी समझदारी जो आम जानवरों में नहीं होती। जैसे वो जानता हो कुछ बुरा होने वाला है, जैसे वो पहचान चुका हो इस घर में छपी एक खतरनाक खामोशी को। नसीमा ने वो मंजर खिड़की से देखा और उसके दिल में नफरत की आग भड़कने लगी। ये शेर, ये मेरे और मेरे शौहर के बीच आ गया है। अगर ये यहां से चला जाए तो शायद साजिद मुझे पहले जैसा चाहने लगे, शायद वो मेरी बात सुने, मेरे करीब आए। एक दिन इसने बाजार से गोश्त खरीदा, आम सा, लेकिन इसमें जहर की थोड़ी मिकदार मिला दी जो उसने चूहे मारने की दवा से निकाली थी। इससे यह एहसास नहीं था कि वो क्या कर रही है, या शायद एहसास था मगर लालच और हसद ने इसे अंधा कर दिया था। वो रात मामूली सी दिखाई देती थी। साजिद मस्जिद गया हुआ था। नसीमा ने आहिस्ता से कोठे का दरवाजा खोला। शेर ने इसे देखा मगर कोई रद्दे अमल ना दिया। नसीमा ने गोश्त उसके सामने रख दिया और दरवाजा बंद करके वापस चली गई। चंद लम्हों बाद शेर ने गोश्त सूंघा और फिर उस पर मुंह मार दिया। कुछ देर तक सब खामोश रहा। फिर अचानक कोठे से हल्की हल्की कराहों की आवाजें आने लगीं। शेर को कुछ होने लगा था। वो दर्द से कराहता मगर चुप रहा। नसीमा छत पर आकर खड़ी हो गई और नीचे देखती रही। इसके चेहरे पर अजब सा सुकून था, जैसे वो किसी जीत पर खुश हो। मगर शेर ने ना आवाज निकाली, ना भागा, ना हमला किया।
वो आहिस्ता आहिस्ता कोठे से बाहर निकला, दर्द में लड़खड़ाते कदमों के साथ आंगन के एक कोने में जाकर बैठ गया। चांदनी इसके जख्मों पर पड़ रही थी और उसकी आंखें बस एक तरफ साकित थीं। साजिद जब वापस आया तो उसने शेर को इस हालत में पाया। वो दौड़कर उसके पास आया, इसकी आंखों में देखा, इसके बदन को छुआ। वो गर्म था, तप्श से जल रहा था। या अल्लाह, ये उसे क्या हो गया? शेर ने आहिस्ता से अपनी गर्दन उठाई और साजिद की आंखों में देखा, जैसे कोई शुक्रगुजार मुस्कुराहट हो, जैसे वो कह रहा हो, मैंने तुम्हें बचा लिया, अब तुम बाकी इम्तिहान खुद देना। फिर शेर ने गर्दन नीचे झुका ली और बगैर आवाज के वहीं साजिद के कदमों में दम तोड़ गया। साजिद की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने शेर के सर पर हाथ रखा और कहा, वो सिर्फ जानवर नहीं था, तो मेरा मुहाफिज था, मेरा राज था, मेरा सजदा था। नसीमा दौड़ खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी कश्मकश थी। एक तरफ दिल के किसी कोने में थोड़ा सा पछतावा और दूसरी तरफ एक खामोश फतह। लेकिन वो नहीं जानती थी कि यह फतह नहीं, इस अंजाम की पहली ईंट है जो उसके लिए तैयार हो चुकी है। शेर की लाश साजिद के कदमों में पड़ी थी, चांदनी उसके बेजान जिस्म पर फैल रही थी और साजिद के हाथ कांप रहे थे। इसके चेहरे पर न सिर्फ गम बल्कि एक ऐसा दुख था जो लफ्जों से बयान नहीं किया जा सकता। वो जानवर जिसे लोग दरिंदा कहते, आज अपनी वफादारी और खामोश खिदमत से इंसानों की आंखें खोल गया था। मगर साजिद के घर में अब भी एक आंख बंद थी और वो थी नसीमा की। साजिद ने खामोशी से शेर के जिस्म को सफेद चादर में लपेटा, आंगन के कोने में एक गड़ा खोदा और उसने एक जानवर को अपने हाथों से सपर्दे खाक किया। कोई आंसू, कोई चीख, कोई शोर नहीं, बस दिल की गहराइयों में सजदे की कैफियत थी। उसने शेर की कब्र पर हाथ रखकर बस इतना कहा, तो गया, लेकिन अपने जाने से मुझे वो सबक दे गया जो इंसानों ने कभी ना दिया। नसीमा दौड़ खड़ी देख रही थी, इसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी जरूर थी, मगर वो ज्यादा देर गम में नहीं रुकी। अगली ही सुबह वो हसन मामूल सफाई करते हुए बुड़बुड़ाने लगी, अच्छा हुआ जान छूटी, ना उसकी बो रही, ना उसका गोश्त ढूंढने की फिक्र, अब घर में सुकून आएगा। साजिद ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा, जैसे किसी अनजान औरत को देख रहा हो। सुकून? तुमने इस सुकून को दफन किया है जिसने हमें रातों को महफूज रखा, जिसकी खामोशी में अल्लाह की रहमत थी। नसीमा ने तंज से कहा, ओ, तो अब तुम शेर के मरने पर अफसरदा हो? इंसानों से बढ़कर जानवर हो गया था वो तुम्हारे लिए। साजिद ने कुछ न कहा, वो जानता था कुछ जवाब सिर्फ वक्त देता है, मगर वक्त ने जल्दी अपना रुख बदला। अगले ही हफ्ते वो बरकत जो साजिद के घर में शेर की मौजूदगी में आ चुकी थी, अचानक रुखसत होने लगी। लकड़ियों में कीड़ा लगने लगा, बारिश के बाद सारी गठरियां भीग जाती, बाजार में कीमतें गिर गईं। जिन हाथों में नेमतों का वजन था अब वो खाली हो चुके थे। साजिद के चेहरे पर फिक्र छा गई। वो रातों को मस्जिद में बैठा रहा करता और दुआ करता, या रब, अगर मेरे किसी अमल में कोताही है तो मुआफ फरमा, अगर कोई मेरे जरिए तेरे हक में कोई कोताही हो गई है तो मुझे सजदे में गिरा दे, बस तो राजी हो जा। लेकिन नसीमा, उसने हालात के बिगड़ने पर साजिद को ही कसूरवार ठहराना शुरू कर दिया। देख लिया ना, वो सब कुछ इस शेर की वजह से था। मैं तो पहले ही कहती थी, वही लाया था बरकत। तुमने इसे पाल कर अच्छा किया और अब उसके बगैर तुम कुछ नहीं। साजिद ने एक दिन आहिस्ता से पूछा, नसीमा, क्या तुमने इसे जहर दिया था? यह सवाल खंजर की तरह नसीमा के दिल में उतरा। इसकी आंखें थरथरा गईं, लेकिन जबान पर वही जिद का जहर था। काश दिया होता, कम अज कम तुम मेरे होकर तो रहते। इस जानवर ने तुम्हारा दिल चराया था, तुम्हारी मोहब्बत खा गया था वो।
ये एतराफ, ये जुमला साजिद की बर्दाश्त की आखिरी हद थी। वो खामोशी से उठा, मस्जिद गया और कई घंटे वहां बैठा रहा। दिल रब के सामने हाजिर था और लब पर सिर्फ एक जुमला, या अल्लाह, मेरी बीवी ने नाशुक्री की इंतहा कर दी है। वो नेमतों को जहर देकर मारती है। अब फैसला तेरा है, साबित कर दे कि तेरा इंसाफ क्या होता है। और जैसे आसमान पर यह फरियाद कबूल हुई, चंद दिनों में नसीमा की तबीयत खराब होने लगी। इसके चेहरे पर सूजन आ गई, बदन में दर्द, हर वक्त थकन, और सबसे बढ़कर उसकी जबान जो कभी खामोश ना होती थी अब बेअसर हो चुकी थी। गांव की औरतें मिलने आईं तो नसीमा उन्हें देखकर रो पड़ी। मेरी जिंदगी उजड़ गई, मेरे शौहर मुझसे दूर हो गए, वो अब मुझसे बात भी नहीं करते। फातिमा, गांव की नेक औरत ने इसके सर पर हाथ रखकर कहा, नसीमा, तूने शुक्र छोड़ दिया और लालच को गिले लगाया। अल्लाह की रहमत का चिराग खुद बुझा दिया तूने। अब अगर तौबा ना की तो जो बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। नसीमा ने पहली बार खुद को आईने में देखा। वो खूबसूरत औरत जो खुद पर फख्र किया करती थी, अब आंखों के गिर्द सियाह हल्कों, चेहरे की जर्दी और तकलीफ की झुर्रियों में बदल चुकी थी। मगर इसका दिल अभी भी मुकम्मल नर्म ना हुआ था। वो अब भी यही सोचती थी, साजिद को कैसे वापस पाऊं, इसकी तवज्जो फिर से कैसे हासिल करूं। वो मोहब्बत नहीं, बस अपनी हारी हुई बाजी जीतना चाहती थी। लेकिन साजिद अब वो शख्स ना रहा था। उसके अंदर कुछ टूट चुका था, शायद कुछ बन चुका था। एक नई पहचान, एक नई मंजिल। गांव के सूरज ने जैसे अपनी रोशनी मद्धम कर दी थी। चमनपुर की वो गलियां जो कभी नसीमा के कहकहों से गूंजती थीं, अब उसके सिसकियों की गवाह बन चुकी थीं। शेर की मौत के बाद साजिद की खामोशी दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। वो अब रातों को देर तक जागता, तकिए पर नहीं, मस्जिद के फर्श पर सोता। इसकी आंखों में नींद नहीं। एक सवाल था, वो सवाल जो इंसान खुद से करता है जब अल्लाह इसे एक निशान देता है। साजिद ने अब नसीमा से मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली थी। ना कोई बात, ना कोई ताना, ना कोई शकवा, सिर्फ खामोशी। वो खामोशी जो कहर बन जाती है इस शख्स पर जो दिल तोड़ता है। नसीमा को यह रवैया काटने लगा था। इससे याद आने लगा वो वक्त जब साजिद इसे मोहब्बत से बुलाता, इसकी बातों पर मुस्कुराता, इसके नखरे बर्दाश्त करता। वो सब ख्वाब की तरह लगने लगा था और इस ख्वाब का खात्मा खुद उसने अपने हाथों किया था। एक दिन साजिद दरवाजे पर खड़ा रहा, हाथ में एक थैला था और सामने गांव के बुजुर्ग मौलाना तैयब। नसीमा दरवाजे के पीछे से झांक रही थी। मौलाना जी, मैं एक बड़ी बात का फैसला ले चुका हूं। मेरे निकाह में वो औरत है जिसने अल्लाह की नेमत को जहर देकर मार दिया। मैं अब मजीद इस आजमाइश में खुद को बर्बाद नहीं कर सकता। मैंने दूसरी शादी का फैसला कर लिया है और इस बार सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो औरत शुक्रगुजार हो, नेक हो, सादा हो। मौलाना ने आहिस्ता से कहा, यह फैसला भारी है साजिद, मगर अगर तुम्हारा दिल टूट चुका है और नियत साफ है तो अल्लाह गवाह है तुम्हारे दर्द का। यह सुनते ही नसीमा के पैरों तले जमीन निकल गई। उसका जिस्म लरस गया। वो दरवाजे से हटकर पीछे गिरी, जैसे इसके कानों ने जो सुना वो उसकी अक्ल कबूल न कर पाई हो। साजिद ने गांव की मस्जिद में निकाह कर लिया। इसकी नई बीवी रूबीना यतीम बच्चियों के मदरसे में पढ़ाती थी। चेहरे पर नूर, बात में सलीका और दिल में शुक्र। वो जब साजिद के घर आई तो फर्श धोकर साफ किया, दीवार पर कुरान की आयत लटकाई और पहली ही रात रब से दुआ की, आ अल्लाह, ये घर बरकत वाला बना दे। नसीमा एक तरफ कोठरी में पड़ी थी। इसे रूबीना की आवाजें जलाने लगीं। वो हंसी जो साजिद की जबान पर वापस आई थी, इसके दिल को काटने लगी। उसने पहली बार खुद को अकेला पाया, मुकम्मल, बेयारो मददगार, तन्हा। फिर वो वक्त भी आया जब गांव वालों की नजरों में भी नसीमा का चेहरा बदल गया।
अब कोई इससे हमदर्दी नहीं करता था, कोई इसके साथ नहीं बैठता था। सब जान चुके थे कि इसकी नाशुक्री, इसके गुरूर, उसके तानों ने इसके ही घर को बर्बाद किया। वो दिन बा दिन बीमार होने लगी। चेहरे पर रौनक गायब, आंखों में वहशत और वजूद में खालीपन। एक रात उसने ख्वाब देखा, शेर इसकी कब्र से उठा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इसकी आंखें सुर्ख थीं, मगर चेहरा पर सुकून। मैं सिर्फ जानवर नहीं था, मैं तुम्हारे नसीब का फैसला था। तुमने अल्लाह के वसीले को मारा, अब रब ने तुम्हें तन्हा कर दिया। नसीमा चीख कर उठ बैठी, पूरा जिस्म पसीने में डूबा हुआ था। उसने साजिद को आवाज दी, मगर वो रूबीना के साथ कमरे में था। इसकी आवाज सिर्फ दीवारों से टकरा कर लूट आई। सुबह जब रूबीना उठी तो उसने देखा कि नसीमा का जिस्म थोड़ा मुड़ा हुआ था, चेहरा सूजा हुआ और सांसें बेतरतीब। साजिद, जल्दी आओ, कुछ गड़बड़ है। साजिद आया। डॉक्टर बुलाया गया, मगर डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा, यह जिस्म सिर्फ बीमार नहीं, ये रूहानी अजाब में है, उसे दवा नहीं, तौबा चाहिए। नसीमा ने हिचकियां लेकर कहा, साजिद, मुझे मुआफ कर दो। मैंने तुम्हें, इस शेर को और अपने रब को धोखा दिया। साजिद ने आहिस्ता से कहा, तुमने मेरा दिल तोड़ा, रब की रहमत को रद्द किया। मैं मुआफ कर सकता हूं, मगर उसकी अदालत में मुआफी तभी मिलेगी जब दिल से तौबा करोगी। वो आंखों में आंसू लेकर तड़पती रही। इसके हाथ साजिद के कदमों पर गिरे, मगर वक्त अब पलटने वाला न था। सर्दियों की वो खामोश सुबह थी। फिजा में सुकूत था, जैसे कायनात सांस रोके किसी फैसले की मुंतजर हो। साजिद अपने कमरे में रूबीना के साथ कुरान की तिलावत सुन रहा था और दूसरी तरफ वो कोठरी थी जहां कभी नसीमा की आवाजें गूंजा करती थीं। अब वहां खामोशी की हुकूमत थी। नसीमा बिस्तर पर लेटी थी। इसका जिस्म कमजोर, आंखें गहरे हलकों में डूबी हुई और लब बेरंग हो चुके थे। इसकी सांसें बेतरतीब थीं, जैसे जिंदगी इससे रुखसत मांग रही हो। रूबीना दिन भर उसकी खिदमत करती, दवा वक्त पर देती, दम पड़ती और रात को उसके लिए दुआ करती। या अल्लाह, अगर ये औरत वाकई तौबा कर चुकी है तो उसे मुआफ कर दे, वरना इसके गुनाहों को उसके लिए कफारा बना दे। नसीमा के आंसू अक्सर बहते, मगर लबों से अब सिर्फ यही निकलता, मैं नाशुक्री करके हार गई, रब की रहमत को पहचान ना सकी। शेर सिर्फ जानवर नहीं, मेरा नसीब था। मैंने इस पर जहर देकर अपना अंजाम खरीद लिया। एक दिन जब साजिद इसके करीब आया तो उसने इसका हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, साजिद, मैं जानती हूं मैं बहुत देर कर चुकी हूं। तुमने मुझे अपनी मोहब्बत दी, इज्जत दी, घर दिया, और मैंने तुम्हें ताने दिए, नाशुक्री की। आज मैं सिर्फ एक दुआ चाहती हूं, अगर रब मुझे मुआफ कर दे तो तुम भी कर देना। साजिद की आंखों में नमी आई, मगर उसकी आवाज पुरसुकून रही। मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया नसीमा, लेकिन सच यही है कि जिसने शुक्र न सीखा वो इज्जत भी खो बैठता है और रहमत भी। उसी रात जब आसमान पर हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, नसीमा की सांसें थम गईं। कोई शोर नहीं हुआ, कोई चीख नहीं निकली, सिर्फ वो खामोशी फैल गई जो हर इंसान को उसके अंजाम पर ले जाती है। साजिद ने इसे गुस्ल दिया, कफन पहनाया और गांव के कब्रिस्तान में दफन किया। ना कोई आंख अश्कबार थी, ना किसी ने कुछ कहा, जैसे फितरत ने खुद फैसला सुना दिया हो। रूबीना ने इस रात साजिद के सामने बैठकर कहा, आपके सब्र ने आपको बचा लिया और उसकी नाशुक्री ने इसे तन्हा कर दिया। साजिद ने कुरान की आयत पढ़ी, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। और वाकई शुक्र ने साजिद को वो जिंदगी अता की जो नेमतों से लबरेज थी, और नाशुक्री ने नसीमा से वो सब छीन लिया जो कभी इसका था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए,
کامنٹ کیجئے کہ آپ کو سب سے زیادہ کس لمحے نے متاثر کیا۔ شیئر کیجئے اس سبق آموز کہانی کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ۔ سبسکرائب کیجئے ایم اے اسٹوری سینٹر کو تاکہ آپ ایسی ہی دل کو چھو لینے والی سچی، روحانی اور سبق آموز کہانیاں سن سکیں۔ اللہ حافظ اور یاد رکھیں، شکر انسان کی قسمت بدل سکتا ہے اور ناشکری اسے مٹی میں ملا سکتی ہے۔